ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلہ، اموات کی تعداد 8,500 کے قریب پہنچ گئی۔ ترکی میں اب تک 6,000 جبکہ شام میں 2,500 اموات کی تصدیق۔ بڑی تعداد میں لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا ہلاکتوں میں کئی گنا اضافے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن میں پاکستان سمیت 65 ملکوں سے ہزاروں اہلکار شریک۔ بڑے پیمانے پر جاری امدادی سرگرمیوں کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ مؤخر۔ خانہ جنگی کے شکار شام میں امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ملبہ ہٹانے کے لیے مشینری اور آلات نہ ہونے کے باعث ریسکیو آپریشن سست روی کا شکار۔ بشار الاسد حکومت کی بین الاقوامی برادری سے ہنگامی بنیادوں پر امداد کی اپیل۔ امدادی سامان لے کر پی آئی اے کے مزید 2 طیارے ترکی اور شام روانہ۔ پاکستان مشکل میں مبتلا اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم نے امدادی فنڈ بھی قائم کیا ہے۔ تعاون کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی شام کے سفیر رمیز الرائی اور چیئرمین این ڈی ایم اے انعام حیدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہو رہا ہے۔ قومی اداروں کی توقیر، اسلام آباد مقامی حکومت بل میں ترمیم، اقتصادی اور خارجہ پالیسی، مسئلہ کشمیر، سی پیک اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت 7 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد مہذب اقوام کا شیوا ہوتا ہے۔ بڑھتی آبادی کے باعث ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہو چکا ہے اور بڑھتی ٹریفک ماحولیات پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ڈرائیور حضرات نشے سے پرہیز کریں، صدر عارف علوی کا روڈ سیفٹی کانفرنس سے خطاب۔ پولی کلینک ہسپتال میں انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری۔ 128 سلائڈز، سی ٹی اسکین اور جدید ترین 3D میموگرافی مشین نصب۔ جاپان کے تعاون سے 1.5 ٹیسلا MRI اسکینر کی تنصیب جلد مکمل بنا رہے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ حکومت سندھ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ صوبے میں تعمیرات کے شعبے میں بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بحالی کے کاموں میں امداد اور تعاون پر ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک کے مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ لکی مروت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کامیاب آپریشن، 12 دہشت گرد ہلاک۔ تحریک طالبان پاکستان کے شرپسندوں کا گینگ کسی بڑی کارروائی کے لیے لکی مروت سے ٹانک جا رہا تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کے سامان سے بھاری اسلحہ اور افغان کرنسی برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR۔ چلاس کے قریب شاہراہ قراقرم پر مسافر بس اور کار میں تصادم، 21 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ بس گلگل سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت کا ٹریفک حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لیے مغفرت کی دعا، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ روس کے خلاف یوکرین کی مدد جاری رہے گی۔ چین کے ساتھ تنازعات نہیں، مساوات چاہتے ہیں۔ امریکی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ موسمیاتی بحران سب کے لیے خطرہ ہے، چاہے وہ کسی سرخ ملک میں رہتا ہو یا سبز میں۔ کورونا وبا اور یوکرین جنگ نے امریکہ سمیت پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان برپا کیا۔ صدر جو بائیڈن کا دوسرا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب۔ یوکرین کے سرحدی شہر باہموت پر قبضے کے لیے شدید لڑائی۔ روسی فوج نے محاصرہ سخت کر دیا۔ یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی سپلائی نیٹو کو مؤثر طریقے سے تنازع میں گھسیٹ رہی ہے۔ امریکہ اور اتحادی جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی وزیر دفاع۔
मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मतवक्के। अगले 2 रोज के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मरी, आज़ाद कश्मीर और शिमाली इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PSL 8 के लिए पेशावर ज़ल्मी एंथम धूम मचाने को तैयार। लाहौर कलंदर्स का शानदार कलंदर्स नाइट मनाने का ऐलान। तकरीब कल अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में होगी। PSL 8 के लिए लाहौर कलंदर्स की ऑफिशियल किट और गाना भी लॉन्च किया जाएगा। मैनेजमेंट और खिलाड़ी शिरकत करेंगे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, सऊदी क्लब अल हिलाल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लेमिंगो को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। सालम अल-दिसारी ने 2 गोल किए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और मिस्री क्लब अल हिली के दरमियान खेला जाएगा। अंटार्कटिका के बर्फीले और जकबस्ता पानी में तैराकी का ख्वाब। चिली की बारबरा हर्नांडेज ने मुनफरिद अंदाज में नाम कर लिया। अंटार्कटिका के खून जमा देने वाले पानी में सबसे तवील तैराकी करके दंग कर दिया। 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में रिवायती स्विमिंग ड्रेस के साथ 2.5 किलोमीटर का फैसला तय किया। आइस मरमेड के नाम से मशहूर 37 साला बारबरा ने 45 मिनट में तैराकी की। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूं सबा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। नाज़रीन, तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला, अमवात की तादाद 8,500 के करीब पहुंच गई। तुर्किया में अब तक 6,000 जबकि शाम में 2,500 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग अब भी मलबे तले दबे हैं। आलमी इदारा सेहत की मुताबिक हलाकतों में कई गुना इजाफा हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान समेत 65 मुल्कों से जायद अहलकार शरीक हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर जारी इमदादी सरगर्मियों के बायस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया भी मुअख्खर कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सदफ अफजल से। तुर्किया और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से होने वाली तबाही के बारे में आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावज़ कर सकती है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ताहम सख्त मौसमी हालात की वजह से इमदादी कारकुनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ अब मलबे तले किसी के जिंदा रहने की उम्मीद कम रह गई है। तुर्किया में मुतासरा शहरों का मवासलाती निज़ाम और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हवाई अड्डे भी शदीद मुतासर हुए हैं और रनवे पर तैयारों की आमदोरफ्त मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से दीगर ममालिक से इमदाद को लाने में भी मुश्किल हो रही है। दुनिया भर से इमदादी सामान तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भेजी जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ 30 लाख अफराद इस खौफनाक ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं, जिनमें 14 लाख बच्चे भी शामिल हैं। तुर्किया में मलबे से अब तक 8,000 से ज़ायद अफराद को निकाला जा चुका है। तुर्किया की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 11,342 इमारतों के गिर जाने की इतलात हैं। तुर्किया ने ज़लज़ला ज़दा इलाके में 24,400 से ज़ायद सर्च एंड रेस्क्यू एहलकारों को तैनात किया है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है और इमदादी सरगर्मियों समेत इमदादी सामान की फराहमी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए एक रिलीफ फंड कायम करने की हिदायत जारी करते हुए तमाम पाकिस्तानियों से इस फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर ज़लज़ले से मुतासरा शाम के आवाम के लिए इमदादी सामान की पहली खेप रवाना कर दी गई है। इमदादी सामान में 260 खैमे और 2600 कंबल शामिल है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली गुल से। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में हम अपने मुतासरा भाइयों के साथ खड़े हैं। 4000 हम ब्लैंकेट कंबल भिजवा रहे हैं और 6000 टेंट्स भिजवाएंगे, क्योंकि वहाँ सर्दी का भी मौसम है और ऐसी ये चीज़ें हैं, टेंट्स भी ऐसे हैं जो सर्दी में काम आ सकें। और जो अभी फौरी तौर पे ये चार्टर्ड फ़्लाइट जो है PIA की ये जा रही है, और साथ ही साथ एक कन्वाय जो NLC वालों का है वो हम कोई उसमें भी काफ़ी सारा सामान भेज रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने कहा कि इमदादी सामान के साथ रेस्क्यू टीमें भी ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए भिजवाई जा रही हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने पहले फ़ेज़ में तुर्की में और सीरिया में ना सिर्फ इमदाद इसके साथ बल्कि मेडिकल टीम्स के साथ एक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का भी प्लान बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में ये फ़्लो फ़्लाइट्स के अलावा रोड कॉन्वॉय की सूरत में, जैसे कि भी मिनिस्टर साहब ने बताया, ये चलेगा। तुर्की के पाकिस्तान में सफ़ीर ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। I highly appreciated the support and assistance of our brother here in the Pakistani government and our brotherly Pakistani people for this support for the Syrian Arab Republic and the Syrian people, and of course this kind of a humanitarian aid which the government of Pakistan sent it to our country, it will give good reflections about the strong and historical relation between the two countries. वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कई टन इमदादी सामान बजरिया सड़क भी भिजवाया जा रहा है, जो कि 6 रोज में ज़लज़ला मुतासरीन को मिल जाएगा, जिससे उनको बहाली में मदद मिलेगी। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। तैयारा हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंचा, जिसमें खैमे, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वज़ारत ख़ारजा और तुर्की में पाकिस्तानी सफारतखाने के ताउन से वतन वापस लाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, तुर्की में ज़लज़ले से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए जाने वाले पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम अहलकारों ने आदमियान में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इमदादी ऑपरेशन के दौरान टीम ने 48 घंटे ट्रैप रहने वाले नजीब को रेस्क्यू कर लिया। यूनाइटेड नेशन इंसराग से सर्टिफाइड 51 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम इंटरनेशनल रिस्पांस का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुखय्यर हज़रात और आवाम से अपील की है कि तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए कायम फंड में दिल खोल कर एहतियात दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरादर मुल्क तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले से क़यामत सुग़रा का मंजर है और मुश्किल वक्त में उनसे ताउन हमारी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्की में पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मुश्किलात के लिए हमेशा मुखलिसाना और फ़राग़दिलाना मदद की पेशकश की गई। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इस सूरत हाल में उनसे ताउन का हाथ बढ़ाएं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी किया गया है और इस इजलास में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सिफाती और सियासी हिमायत का इयादा किया जाएगा। करारदाद में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में इस्तिस्वाब राय के इनेकाद का मुतालबा किया जाएगा। एजेंडे में 2 कानून बिल्स की मंजूरी भी शामिल है। पहला बिल वज़ारत कानून की जानिब से पेश किया जाएगा, जिसका मकसद वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के एहतमाम के हवाले से मौसर कानून साजी करना है, जबकि दूसरा कानूनी बिल वज़ारत दाखिला की जानिब से पेश किया जाएगा, जिसका मकसद इस्लामाबाद मकामी हुकूमत बिल में तरमीम करना है। इसके अलावा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इक़्तिसादी और खारजा पॉलिसी, CPEC, मसला कश्मीर, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और कौमी इदारों के एहतराम से मुतालिक अमूर पर बहस भी की जाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि रोड सेफ्टी के हवाले से माशरे में आगाही ज़रूरी है। ट्रैफिक कवानीन पर मुअस्सर अमल दरामद होना चाहिए। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि हादसात से ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी के हवाले से लोगों में आगाही हो।
انہوں نے کہا کہ اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی سوچ بچار ضروری ہے تاکہ لوگ بآسانی اپنی جگہ پر جا سکیں۔ اس موقع پر صدر مملکت نے ترکی میں شام اور زلزلے سے ہونے والے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز کانگریس کے صدر محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ترقی پذیر ملکوں میں حادثات کی شرح زیادہ ہے۔ روڈ سیفٹی سے متعلق پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ہمیں روڈ سیفٹی سے متعلق قوانین پر مؤثر عمل درآمد، ایمرجنسی ہیلتھ سروسز کی اپ گریڈیشن اور عوام میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنا ضروری ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس سے دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ حادثات سے ہونے والی اموات اور معذوری سے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سمارٹ پالیسیز کے ذریعے اس اہم مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نیشنل ہیلتھ سیفٹی پلانز پر مؤثر عمل درآمد اور گاڑیوں میں سیفٹی فیچرز کو یقینی بنانا ہوگا۔ ناظرین، حکومت نے اسلامی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس پر شرح منافع میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ 3 ماہ کے سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 5.5% اضافے کے ساتھ 15% ہو گئی ہے۔ 6 ماہ کے سرٹیفکیٹس پر شرح منافع میں 5.25% اضافے کے ساتھ 15.5% کر دی گئی ہے۔ 3 سال والے سرٹیفکیٹس پر شرح منافع میں 3.25% اضافہ کیا گیا ہے اور منافع کی شرح 10.75% سے بڑھ کر 14% ہو گئی ہے۔ 5 سال کے اسلامی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ پر شرح منافع میں 3.5% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے پارٹی کی شعبہ خواتین کی صدر سینیٹر نزہت صادق نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تنظیمی امور اور سیاسی عمل میں خواتین کے کردار کو فعال بنانے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے عمران خان کے بیان پر تبصرے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پرانی عادتیں جاتے جاتی ہیں۔ اسلام آباد کے پولی کلینک ہسپتال میں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتال میں 128 سلائس سی ٹی اسکین اور اسٹیٹ آف دی آرٹ 3D میموگرافی مشین انسٹال کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ صحت کے شعبے میں اصلاحات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین کی وجہ سے کینسر کے تشخیصی نظام میں بہتری آئے گی۔ پولی کلینک ہسپتال کی توسیع منصوبے پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ ہسپتال سالانہ 40 لاکھ سے زائد مریضوں کو مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتی ہے، سرکاری ہسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ وفاقی ہسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی تمام توجہ سیلاب متاثرین کی بحالی پر مرکوز ہے۔ تعمیر نو اور بحالی کے لیے عالمی معاونت میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کراچی میں سندھ عہد سے تعمیر نو تک کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد مکانات کی تعمیر نو اور انفراسٹرکچر سمیت تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے باہمی مشاورت سے حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جنیوا کانفرنس کی روشنی میں تعمیر نو کے کام کا ارادہ رکھتی ہے۔ سندھ حکومت نے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے پہلے سے ہی طریقہ کار وضع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تعمیر نو کے عمل کو مکمل طور پر شفاف بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ کانفرنس سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے سندھ میں سیلاب سے تباہ کاریوں کے بعد بحالی اور تعمیر نو کی ضرورت اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ سیکیورٹی پر کمپرومائز ہی نہیں کریں گے۔ کوشش ہے حالات بہتر ہوں۔ کوئٹہ میں میڈیا ہیڈ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ذمہ داری سے رپورٹنگ کرے تو دہشت گردی میں 70% کمی آئے گی۔ NFC کا گزشتہ سال اور اس سال کے بقایا جات نہیں ملے۔ PPL پر تو 2016 سے بقایا جات واجب الادا ہے۔ معدنی وسائل سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ کیس ICSID میں ہار چکے تھے۔ بلوچستان کا ہارے ہوئے کیس میں شیئر لینا بڑی کامیابی ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے صدر انجمن تاجران GT روڈ شاہدرہ عبدالرؤف نیازی کی سربراہی میں وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو درپیش مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ تاجروں کا شاہدرہ میں ناقص منصوبہ بندی اور عجلت میں عوامی امنگوں کے برعکس فلائی اوور منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک اس وقت معاشی چیلنجز سمیت معاشرتی اور دیگر مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے تاجر برادری سمیت سب کو مل کر مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔
मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि कारोबारी बरादरी टैक्स देकर मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के साथ कई लोगों को रोजगार देने का जरिया भी है। वफ़द ने कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्क के माशी हालात को समझते हुए हुकूमत से भरपूर ताउन कर रही है। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, ताजरों की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे शुरू किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने टास्क फोर्स बराए ज़राअत तश्कील दे दी है। टास्क फोर्स ज़रई पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और ज़रई अजनास की मार्केट तक आसान रसाई के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। मोहसिन नकवी टास्क फोर्स बराए ज़राअत के चेयरमैन होंगे। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में फिलफौर फैसले किए जाएँ ताकि सूबे में ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स काश्तकारों और किसानों के मसाइल के हल और फसल का बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए इक़दाम करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम से नए तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के इंतजामी मामला, गुड गवर्नेंस से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर इमदादुल्लाह बोसाल को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में अब तक 310 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,836 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक 268 कंपनियों के हिस्स का कारोबार हुआ, जिसमें 167 कंपनियों के हिस्स में तेजी, 81 कंपनियों के हिस्स में कमी, जबकि 20 कंपनियों के हिस्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एरा से 2005 में आने वाले जल्जले में मुतासिरीन के लिए जमा होने वाले फंड्स की तफसील तलब कर ली है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने न्यू बालाकोट सिटी जल्जला मुतासिरीन से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतासिरीन जल्जले के लिए जमा होने वाली रकम के खर्च और बाकी मादा रकम के हवाले से एरा से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इमदादी काम को तलब करते हुए कहा कि 2005 में आने वाले जल्जले को 18 साल बीत गए, लेकिन मुतासिरीन की बहाली नजर नहीं आ रही। दौरान समाअत अदालत के इस्तफसार पर एरा के डायरेक्टर ने बताया कि बालाकोट मानसहरा में मुतासरीन के आबादकारी और तरक्याती मंसूबों पर 205 अरब रुपए खर्च किए गए। अदालत ने एरा से खर्च की गई रकम के ऑडिट से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो कत्ल की 8 अपीलें तकरीबन 5 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया, जो कल अपीलों की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ शामिल हैं। बलूचिस्तान में मकामी हुकूमतों के 2 मरहलों और कौमी असम्बली के हल्के NA 265 कोयटा पर ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोयटा में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर फयाज हुसैन मुराद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि खाली रह जाने वाली 56 यूनियन काउंसिलों, जबकि 2 अजला हब और लसबेला समेत तहसील हरमजई में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग 5 मार्च को होगी। 32 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के हल्के NA 265 कोयटा 2 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 213 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ वोटर्स की कुल तादाद 4 लाख से जायद है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हाजी लश्करी रेसाई की आईनी दरख्वास्त का जायजा लिया जा रहा है। कोयटा में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात जल्द करवाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत 43 साबिक अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोकते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ से मुतल्लिक दर्ज मुकदमात के केसेस में थाना अपारा में दर्ज मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी पेश न हुए तो उनकी जानिब से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, मुराद सईद, सैफुल्ला नियाजी और शिबली फराज अदालत में पेश हुए। असद उमर, आमिर कयानी, शेरी मजारी और शफकत महमूद की जानिब से भी इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। मुल्ज़िमान की हाजिरियां लगाकर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है।
लकी मरवत में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्द लकी मरवत से टांग की तरफ दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने फायरिंग की लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार महफूज रहे। हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे चिलास से, जहां करीबी इलाके शत्याल के इलाके में शाहराह कुराकरम पर ट्रैफिक हादसे में 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस और कार में होने वाले तसादुम में कई मुसाफिर जख्मी भी हुए, जिन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों में कोहिस्तान जिले की इंतजामिया ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का इफरीत बेलगाम हो गया है। भोपाल में बजरंग दल के गुंडों का मसीहियों पर तकरीब के दौरान हमला। बीजेपी हुकूमत ने हिंदू इंतहा पसंदों की बजाय मसीहियों को ही गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला शाद। भारत भर में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मसीहियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाकर इंतहा पसंद हिंदुओं के हजूम मसीहियों पर हमले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सूबाई दारुल हुकूमत भोपाल में हिंदू ईसाई कशीदगी इंतहा पर पहुंच गई। बजरंग दल के गुंडों ने मजहबी तकरीब के दौरान मसीहियों पर हमला किया, जिसके बायस 5 मसीही शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने हिंदू इंतहा पसंदों की बजाय निहत्ते मसीहियों को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तकरीब ऑस्ट्रेलवी मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की याद में मुनक्किद की गई थी, जिन्हें 24 बरस कबल उड़ीसा में बजरंग दल के जुनूनियों ने उनके 6 और 10 साला बेटों समेत जिंदा जला दिया था। घिनौने जुर्म में मुलविस बजरंग दल के किसी कारकुन को कड़ी सजा नहीं दी गई। दूसरी जानब छत्तीसगढ़ में भी मसीहियों पर हिंदू इंतहा पसंदों के मजालम जारी हैं। कांकेर इलाके में आरएसएस के गुंडों ने चर्च में दाखिल होकर मसीहियों को इबादत से रोक दिया और डंडों से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में लोगों को अपनी ज़मीनों से बेदखल करने और बाहर के लोगों को आबाद करने के मज़मूम एजेंडे के तहत मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुहिम के खिलाफ हर सियासी जमात की तरफ से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मकबूजा इलाके में ज़मीनों से बेदखली और मिसमारी मुहिम के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च किया। पीडीपी रहनुमा और कारकुनों ने म्यूनिसिपल पार्क के करीब पार्टी दफ्तर से शहर के ट्रैफिक हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया और मोदी हुकूमत और काबिज इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर घरों को मिसमार किए जाने के खिलाफ नारे दर्ज थे। नई दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पर भी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मिसमारी मुहिम को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि ये मुहिम सियासी बुनियादों पर शुरू की गई है, जिससे इलाके में खौफ और दहशत फैल गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने एक बयान में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस जालिमाना मुहिम को फौरी तौर पर रोके। मीर वाइज ने भारत पर वाज़ेह किया कि हमसायों से तनाज़ात की मौजूदगी में कोई भी मुल्क तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकता। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा कि भारत कश्मीर में इजरायली नक्श कदम पर चल रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर भारत के जाबिरों और ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तनाज़ कश्मीर के देरपा हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बलडोजर के इस्तेमाल ने जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान से भी बदतर बना दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हर तरफ अफरा तफरी है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मकानों और इमारतों को मुनहदिम करने के लिए हर जगह बलडोजर्स भेजे जा रहे हैं। बरतानिया की मईशत और बरतानवी माशरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया है। इसकी तफसील बता रही है हमारी नुमाइंदा किरण खान। लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में होने वाले सेमिनार का मकसद बरतानवी मईशत में जनूबी एशिया के साउथ एशियंस प्रोफेशनल्स का किरदार और बरतानवी माशरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए कोशिश करना है। सेमिनार में प्रोफेशनल्स और नए लोगों को सामने लाने, खास तौर पर ख़वातीन के किरदार को मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया। हमारे जो लोकल एमपी हैं सैम टैरी, उन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया और भी जो वाइडर इशू हैं उन पे खासकर हमारी बात हुई, जिसमें हमारी यूथ की एंगेजमेंट, हमारी पॉलिटिकल एंगेजमेंट लोकली कम है,
اس کی ضرورت پہ زور دیا گیا، اور اسپیشلی جو میں سمجھتا ہوں جو ایشو ہیں اس پہ جنہیں میں نے ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں اپنی کمیونٹی میں وائڈر کمیونٹی میں انٹیگریٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ سیمینار میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر لندن میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز، وکلاء اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ممبر آف پارلیمنٹس کو اپنے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں تاکہ برٹش پارلیمنٹ میں ان مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ کرن خان، پی ٹی وی نیوز، لندن، UK۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہر حال میں امریکی مفادات کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا کہ ہم چین کے ساتھ تنازع نہیں بلکہ مقابلہ چاہتے ہیں۔ واشنگٹن میں اسٹیٹ آف یونین سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ مشتبہ جاسوسی غبارے کو گرانے کا حکم اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے دیا اور ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پھر بھی امریکہ چین کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے اور مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا چین کی جانب سے اگر ہماری خود مختاری کو خطرہ ہوا تو امریکہ ضرور رد عمل دے گا۔ امریکی صدر نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اپنے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی بحران سے ہر ایک کو خطرہ ہے، چاہے وہ کسی سرخ ملک میں رہتا ہو یا کسی سبز ملک میں۔ جو بائیڈن نے عالمی تنازعات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کے خلاف یوکرین کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے، تاہم انہوں نے اپنے خطاب میں اسرائیل، فلسطین اور کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ نے جنگی صلاحیت میں اضافے کے لیے ہدایت جاری کی ہیں۔ حکمران کوریا لیبر پارٹی کے مرکزی عسکری کمیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتے، ہر شعبے میں دشمن کے دانت کھٹے کریں گے۔ یوکرین کے سرحدی شہر باہموت پر قبضے کے لیے حملوں میں شدت آ گئی ہے اور روسی فوج شہر کا محاصرہ سخت کرنے میں مصروف ہے۔ یوکرینی فوج کی جانب سے بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولینڈ نے فوجی مشقوں کے دوران پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی نمائش کی ہے۔ یہ نظام حال ہی میں جرمنی کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے۔ ہنگری نے بھی عسکری مشقوں میں جدید لیپرڈ ٹینکوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوگیوف نے کہا کہ یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی سپلائی نیٹو کو مؤثر طریقے سے تنازع میں گھسیٹ رہی ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی حملوں کو روکنے اور فائر پاور بڑھانے کے لیے ٹینکوں سمیت دیگر فوجی سامان کی فوری ضرورت ہے۔ ایران اور پاکستان ہمسایہ برادر اسلامی ممالک اخوت بھائی چارے کے عظیم رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دے کر عوام کو معاشی خوشحالی دی جا سکتی ہے۔ خانہ فرہنگ ایران کے ایٹا میں انقلاب ایران کی 44ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کونسل جنرل حسن درویش وند نے کہا کہ تجارت، توانائی، زراعت، لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں تعاون سے دو طرفہ روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور پاکستان ایران تعلقات پر روشنی ڈالی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بین الاقوامی لیپ نمائش کے دوسری ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی IT کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ 4 دن تک جاری رہنے والی اس نمائش میں دنیا بھر سے 900 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفیر امیر خرم راٹھوڑ نے پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت منصوبوں میں 60% IT کا کردار ہے۔ شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ نمائش پاکستانی برآمدات میں اضافے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ لاہور میں 2 روزہ پاکستان کیمیکل ایکسپو جاری ہے، جس میں 100 سے زیادہ صنعتوں اور معروف یونیورسٹیز کے متعلقہ شعبوں نے اپنے اسٹالز لگائے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم نذیر۔ پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر انتظام ایکسپو سینٹر لاہور میں ہونے والی دوسری کیمیکل ایکسپو 2023 کا افتتاح پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ کیمیکل انڈسٹری میں سرمایہ کاری اور تجارتی امکانات کو اجاگر کرنے کے لیے اس ایکسپو کا انعقاد درست سمت میں بروقت قدم ہے۔ ہماری تمام انڈسٹری کیمیکلز کا استعمال کرتی ہے اور انڈسٹری کے چلنے سے، کامرس اور ٹریڈ کا پہیہ چلنے سے
एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तश्कील पाती है। तस्नीम अहमद कुरैशी ने कहा कि ये नुमाइश पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री को बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुतारिफ करवाने और इसे आलमी सतह पर फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। केमिकल एक्सपो में मुल्क की मारूफ केमिकल बनाने वाली सनतों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। हम कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहे तो पाक रुपीज़ में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पाक रुपीज़ की इंपोर्ट में कंट्री के ऊपर जो डॉलर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। पाकिस्तान आज भी एक्सपोर्ट के लिए एक बेहतरीन कंट्री है और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। पाकिस्तान केमिकल एक्सपो में 15 से ज्यादा ममालिक के नामवर साइंसदान अपनी जदीद तहकीक कॉन्फ्रेंस में शेयर भी कर रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हल के साथ एक जामे और मरबूत केमिकल पॉलिसी बनाकर इस सनत में तरक्की के मौक़ों से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुतासरा मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए तश्कील करदा खुसूसी कमेटी का इजलास चेयरमैन कादर खान मंदोखेल की सदारत में हुआ, जिसमें सिविल एविएशन, वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स, वजारत तवानाई और बिजली की तरसीली कंपनियों के मुतासरा मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लिया गया। खुसूसी कमेटी को इदारों के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मुतासरा मुलाजमीन के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है, उन्हें हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। और अब जानेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम। बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने जुमेरात और जुमे को मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कल रात हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी, जो 9 तारीख को मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएंगी। कल से जुमे के दौरान मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात, मानसेरा, कोहिस्तान, हरीपुर और एबटाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जुमेरात से इस्लामाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, खुशाब, मियांवाली, सरगोदा, करक, पेशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, बनू और डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कोयटा, योब, बारखान, हरनाई, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान के मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेह की, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -9, अस्तोर में -7, गुफस -5 और पाराचनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।